Hello everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel Milestones in Biology. So let's start with today's video. Today I am teaching you about the transportation of CO2 in blood. In previous video I have taught you about the transportation of oxygen and carbon monoxide. So let's start with this. It is easier to transport carbon dioxide as compared to oxygen due to high solubility of CO2 in water. Water में highly soluble है more than the oxygen. That is why it can be easily carried by blood than the oxygen. Now, where this CO2 is produced? So, this CO2 is produced at tissue level. CO2 produced tissue level and हमें इसको कहां तक लेके जाना है? ट्रांसपोर्टेड टूवर्ड्स द लंग, ताकि लंग्स में ले जाके उसे हम बाहर की तरफ एक्सपेल कर सकें. सो ये टिश्यू लेवल पे बनेगा और एक्सपोर्ट होगा टू द लंग्स और वहां से इट विल मूव आउटसाइड द बॉडी. तो ये जो CO2 है इट विल बी ट्रांसपोर्टेड by either plasma और RBC. ये ही दोनों जो है वो CO2 को ट्रांसपोर्ट करेंगे लंग्स तक ब्लड के थ्रू. नेक्स्ट इज ये जो CO2 है, सो CO2 लेवल इन deoxygenated blood, it is about 4 ml in 100 ml of ब्लड. तो 100 ml में अप्रोक्सीमेटली 4 ml जितना CO2 होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. तो ये जो CO2 है ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ये 3 फॉर्म्स में होता है. द नंबर 1 फॉर्म इज, फर्स्ट वन इज इन डिसॉल्व्ड फॉर्म. डिसॉल्व्ड फॉर्म में सिर्फ 7% ही CO2 7% ऑफ CO2 गेट ट्रांसपोर्टेड. तो ब्लड में मैंने बताया आपको CO2 तीन तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, जिसमें पहला है इन डिसॉल्व फॉर्म एंड सिर्फ 7% जितना ही CO2 जो है ये इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. अब ये फॉर्म क्या है? जनरली ये जो डिसॉल्व फॉर्म है ये RBC में होता है. व्हाट हैपेंस? CO2 comes from tissue in blood, it enters into RBC. फाइन, ये जो CO2 है ये RBC में एंटर होता है और RBC में ये वाटर के साथ कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाएगा. एंड फॉर दिस यू नीड अ वेरी स्पेसिफिक एंजाइम दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज. फाइन. And then when it gets formed in RBC, it will be transported to plasma. Fine. तो फाइनली ये जो कार्बोनिक एसिड है वो प्लाज्मा में होगा, बट बनता तो वो RBC में है बिकॉज RBC is having कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. सो इस तरीके से सिर्फ 7% CO2 ही ट्रांसफर होगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, टिश्यूज में से CO2 एंटर होता है RBC में, जहां वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में एंड इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड H2CO3 and this carbonic acid will transport it to the plasma. This is the first type. Second type is in form of carbaminohemoglobin. Here it is 23% of CO2 get transported in this form. What will happen? There is a hemoglobin. Fine, this will be called reduced hemoglobin. Reduced hemoglobin के साथ carbon dioxide will react, CO2 will react and it will form carbaminohemoglobin, which is this. Fine, this is carbaminohemoglobin.
and H plus will be released. And this carbaminohemoglobin is a temporary complex. Fine? ये जो complex है temporary है, और जैसे ही this complex will reach to the lungs, this will dissociate into carbon dioxide and water. Fine? So this is the complex which will reach up to the lungs, and there CO2 and water will form, and this is how 23% of CO2 get transported. So again I am telling you, ये जो 23% CO2 है, this carbon dioxide will react with the amino group of hemoglobin. So this is the amino group of hemoglobin, and it will form carbaminohemoglobin, which is a temporary complex, and that time proton will be released, and in this form it will reach up to the lungs. ये कहाँ पे बन रहा है? It is formed at the tissue level, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यूज से आ रहा है. So जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में से आरबीसी में आता है, वो रिएक्ट होके 23% कार्बन डाइऑक्साइड will be moved towards the lung in this form, and at the lung surface in blood this will dissociate into carbon dioxide and water, and जो carbon dioxide है it will move into the alveoli. Fine? So this is how it moves. Now the last one and the most important one. So before that, please take a screenshot, then I will move to the next topic. The third form, the third way in which this is transported is in form of bicarbonate ions. Fine? ये bicarbonate के form में transport होता है, that is the maximum. It is around 70% of CO2 get transported in this bicarbonate form. अब होता क्या है? सबसे पहले ये जो CO2 है that will enter into RBC where it will react with water. Let me show it with the diagram. Fine. What happens? CO2 will form here in tissue and it will get transported in RBC. This is RBC. अब RBC में ये जो CO2 है that will react with water and it will form bicarbonate, carbonic acid it will form. ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड. फाइन. सो ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बहुत इजीली डिसोसिएट हो जाता है and it forms hydrogen ion and bicarbonate ion. Carbonate ion. Fine. So ये स्टेबल नहीं है. कार्बोनिक एसिड इज नॉट स्टेबल. जितनी जल्दी ये बनता है उतनी जल्दी ही ये ब्रेक हो जाता है. आपको ये भी पता है कि इन दोनों को रिएक्ट करवाने के लिए वन एंजाइम इज रिक्वायर्ड, दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड इस एंजाइम के लिए आपको एक एक्टिवेटर की जरूरत है, दैट इज जिंक आयन. फाइन. जिंक आयन इज अ एक्टिवेटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज. तो HCO3 के फॉर्म में 70% जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा. फाइन. नेक्स्ट. सो इट इज द कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन और 70% कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में लंग्स तक पहुंचेगा. अब मैंने आपको ये पिक्चराइजेशन बताई. इसमें आपको याद रखना ये जो मेम्ब्रेन है, दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डोनान्स मेम्ब्रेन. अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होने का रीजन है लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू लेवल पे. दिस इज एट द टिश्यू लेवल ना. सो टिश्यू लेवल पे लो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का. That is why it is getting, this carbonic acid is getting dissociated in hydrogen ion and bicarbonate ion. एक और चीज ये है कि अगर कार्बोनिक एसिड इसी तरीके से बनता रहेगा और एक्यूमुलेट होता रहेगा ब्लड में, सो उससे क्या होगा, ब्लड विल बिकम एसिडिक which is fatal for the living organism. Fine. So as soon as it forms, it will dissociate in this
फॉर्म। अब ये जो हाइड्रोजन आयन है दैट विल गो टू द हीमोग्लोबिन एंड दिस विल मूव आउट ऑफ द आरबीसी। ये जो है ये प्लाज्मा में एंटर होगा। फाइन। जब ये प्लाज्मा में एंटर होता है तो ये ऐसे ही नहीं चला जाता, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोटीन विच हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ इट। सो देयर इज अ प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ कैरियर प्रोटीन। फाइन। ये क्या करेगा, कैरियर प्रोटीन जो है बाइकार्बोनेट को बाहर ले रहा है, तो इससे क्या होगा, आरबीसी से बाहर आया तो इससे आयनिक इम्बैलेंस होने के चांसेस है। सो आयनिक इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए यही कैरियर के थ्रू, जिससे बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आया है, तो प्लाज्मा से क्लोराइड आयन विल मूव अप टू द आरबीसी। आरबीसी के अंदर पहुंचेगा थ्रू द सेम कैरियर protein to maintain the ionic balance. So I am adding here bicarbonate ion will move to the plasma and chloride ion will reach to RBC. ये हुआ। अब इस कैरियर प्रोटीन ने टू वे ट्रांसपोर्टेशन किया, एंटीपोर्ट किया, एक तरफ बाइकार्बोनेट आयन को बाहर लिया और दूसरी तरफ क्लोराइड को अंदर लिया। तो आप इसको नेम कर सकते हैं कैरियर प्रोटीन को, दैट इज बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। फाइन। आप इस नाम से इसको बुला सकते हैं। एंड व्हाई दिस इज एक्सचेंज इज हैपनिंग, exchange causes आयनिक बैलेंस। ठीक है, बैलेंस होना चाहिए कि ठीक है बाइकार्बोनेट को जाना है जाए, बट उसके बदले हमको नेगेटिव आयन चाहिए जिससे आयनिक बैलेंस मेंटेन रहेगा, तो क्लोराइड विल कम इनसाइड। अब बाइकार्बोनेट बाहर गया है तो वो ऐसे तो रहेगा नहीं, इट विल डू समथिंग, सम वर्क विल बी डन। सो दिस बाइकार्बोनेट आयन, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, इट विल रिएक्ट विद सोडियम आयन and it will form sodium bicarbonate NaHCO3 and same it will react with potassium and it will form potassium bicarbonate. So there will it will be called as sodium or potassium bicarbonate. अब ये जो सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट है ये प्लाज्मा में ही क्यों बन रहा है? आरबीसी में भी बन सकता था ना, तो क्यों आता बाइकार्बोनेट बाहर प्लाज्मा में क्यों आता? द रीजन इज दिस डोनान मेम्ब्रेन इज, मैं लिख रही हूं आरबीसी मेम्ब्रेन इज impermeable for potassium and sodium ion. That is why this will form bicarbonate in the plasma, not in the RBC. So this is how 70% of CO2 it is getting transported in the blood to the lungs. Fine. So again I'm repeating it. 70% जो blood है उसमें 70% CO2 will be transported in form of bicarbonate. अब बाइकार्बोनेट बना है तो बाइकार्बोनेट कैसे बनेगा? सबसे पहले जैसे ही ब्लड टिश्यू लेवल पे पहुंचता है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड विल रीच इनटू द आरबीसी। आरबीसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट होगा, जैसा कि आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड, फॉर दैट यू नीड एन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड उस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यू नीड जिंक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जितनी जल्दी बनता है उतनी ही जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। फाइन। तो जैसे ही डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन विल गो अप टू द हीमोग्लोबिन के पास चला जाएगा हाइड्रोजन, एंड दिस बाइकार्बोनेट विल बी ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा, एंड प्लाज्मा में जो ट्रांसपोर्ट होगा, प्लाज्मा में ये बाइकार्बोनेट जिस कैरियर के थ्रू जा रहा है वही कैरियर प्रोटीन आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड को अंदर भेजेगा।
and this phenomena is called chloride shift or Hamburger's effect. So this phenomena, यहाँ क्लोराइड की शिफ्टिंग हो रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स इफेक्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमिना. फाइन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर नीट. जस्ट रिमेंबर दैट. ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. सो क्लोराइड शिफ्ट में क्लोराइड का मूवमेंट प्लाज्मा से आरबीसी में हो रहा है, और ये क्लोराइड शिफ्ट कहां पे हो रहा है? एट द टिश्यू लेवल. इट इज हैपनिंग एट टिश्यू लेवल. फाइन. क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है. जैसे ही ये फॉर्म लंग्स के पास जाएगा, तो लंग्स के पास जाते ही द रिएक्शन विल बी ऑपोजिट. और जैसे ही ये पहुंचेगा लंग्स के पास, व्हाट विल हैपन? CO2 एंड वाटर विल फॉर्म. फाइन. ये सब डिसोसिएट हो जाएगा एंड दिस CO2 विल मूव आउट ऑफ द ब्लड इनटू द लंग्स. दिस इज व्हाट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 इज. सो जैसे ही ये चीज लंग्स के पास, ये तो टिश्यू लेवल के पास हुआ, बट जैसे ही ये लंग्स के पास जाता है, जो पूरी साइकिल होती है वो ऑपोजिट हो जाएगी. ये जो क्लोराइड अंदर गया है वो बाहर आ जाएगा, और ये जो बाइकार्बोनेट है वो अंदर चला जाएगा. सो आई एम मेकिंग दैट डायग्राम, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर फ्रॉम दैट. ये जो है ब्लड के साथ बाइकार्बोनेट्स विल रीच टू दिस लंग के पास ये पहुंचा ब्लड. अब जैसे ही लंग्स के पास पहुंचता है, ड्यू टू द चेंज इन द पार्शियल प्रेशर, व्हाट विल हैपन? बाइकार्बोनेट विल अगेन मूव इनटू द आरबीसी. आरबीसी में जैसे ही बाइकार्बोनेट पहुंचता है, क्लोराइड जो क्लोरीन है दैट विल कम बैक टू दिस प्लाज्मा. इसे क्लोराइड बैक शिफ्ट भी बोला जाता है. इट इज क्लोराइड बैक शिफ्ट. फाइन. आपने वापस से उसको शिफ्ट कर दिया, क्लोराइड को उसके घर वापस भेज दिया. सो इट इज क्लोराइड बैक शिफ्ट. जैसे ही बाइकार्बोनेट, तो आपको पता है बाइकार्बोनेट हाइड्रोजन की प्रेजेंस में तुरंत रिएक्ट होके बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव इनटू द लंग. So this phenomena happens near the lung, and this chloride shift will happen near the tissue level. So this is all how 70% of carbon dioxide get transported in the blood. So today's video is all about the transportation of carbon dioxide, in which I taught you 3 ways. One in the form of dissolved, which is just 7%. दूसरा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, जो हीमोग्लोबिन के अमीनो ग्रुप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होता है, और वो सिर्फ 23% होता है. रेस्ट 70% जो है दैट विल इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन. So this is all about today's video. Don't forget to follow me on Instagram and keep learning. Be safe. Goodbye.